Hello and welcome. Welcome to weekly analysis of Nifty and the key stocks of Nifty. आज है फ्रेंड्स 11th अक्टूबर एंड हम आज एनालाइज करेंगे 12th अक्टूबर के लिए द बाइंग एंड सेलिंग जोन्स, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट लेवल्स एंड द काइंड ऑफ trading plans or investment opportunities for short term, right? So agar hum friends, if you are new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon here, right? By pressing the bell icon, you would get latest information on whichever videos we upload in the YouTube. And there are many videos which you can go through to enhance your technical or fundamental skill sets, and do share these videos with your friends and trading communities who can also be benefited from quality knowledge. So let's look at daily chart of Nifty and Bank Nifty so that we can get a view about the market, friends, right? So अगर हम Friday का market का movement देखें friends, तो Nifty as well as Bank Nifty both opened gap up and bullish bias बनाए रखा almost whole day, but in between yes there was a downtrend and जो gap इन्होंने बनाया था, जो बुलिश गैप बनाया था एक या नोविस गैप बनाया था, वो गैप फिल अप करके निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी बोथ moved upside, right? So of course it was from the international cues, and the banking sectors were leading. In fact, banks ne hi PSU bank as well as entire private banking sector or NBFC was on fire, and almost 3.1% की growth हुई वो sector में on Friday. That's what was reflective in the Nifty as well, right? So in this particular video, friends, we will not be talking about Bank Nifty much, क्योंकि Bank Nifty और जो Bank Nifty के key stocks है उसके लिए मैं एक separate video बनाऊंगा, but इस video में हम बात करेंगे Nifty की और इसके key stocks की, right? So Nifty फ्राइडे को क्लोज हुई 11,914 में विद अ नेट गेन ऑफ ऑलमोस्ट 80 पॉइंट्स, एंड हमने एस्टिमेट किया था फ्रेंड्स की निफ्टी फ्राइडे को 11,700 टू 11,950 के रेंज में मूव करेगी. इनफैक्ट निफ्टी ने वही रेंज में मूवमेंट दिखाई. ओवरऑल मार्केट की ब्रेथ न्यूट्रल टू नेगेटिव रही. 24 stocks of Nifty 50 advanced, while as 26 stocks of Nifty 50 declined on Friday. So that means अगर आप movement in Nifty देखें तो it was more of a index related move which was supported by only few stocks. So it was not a general rally in small or mid cap. Even Nifty 50 के भी सारे stock में upside movement नहीं था, right? So this is worth noticing, because when you are looking at investing opportunities, you should always look at whether it is a rally which we call is a broad based rally, कि ये कुछ stock specific rally है. So at this point of time you're seeing that earlier the rally was supported by pharma, IT and Reliance, but small and mid cap कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखा रहे थे. और at this point of time now banking and financial sector, service sector and IT are showing the up movements. तो फार्मा almost I think 1.5% के आसपास में डाउन था फ्राइडे को. डिस्पाइट दैट निफ्टी moved quite high, right? So अगर हम ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से देखें फ्रेंड्स, तो निफ्टी ने फ्राइडे को हायर हाई एंड हायर लो बनाया है, तो अप ट्रेंड तो कंटिन्यू रहता है. ऑल्दो while this uptrend is going on, you can see there are a lot of these novice gaps Nifty is leaving, and Nifty has got the tendency of filling up the gaps sooner or later. So एक fear आपको हमेशा इस uptrend में बना रहेगा, क्योंकि ये ब्रॉड बेस रैली नहीं है, राइट? एंड अगर हम कैंडल स्टिक पर्सपेक्टिव से बात करें, सो इट्स अ बुलिश कैंडल ऑन डेली एज वेल एज यू वुड सी ऑन अ वीकली ऑल्सो. निफ्टी हैज मेड अ बुलिश कैंडल. सो ओवरऑल जो स्ट्रक्चर दिख रहा है मार्केट का, वो डेफिनेटली बुलिश दिख रहा है बेस्ड अपॉन टेक्निकल एनालिसिस. नाउ अगर हम प्राइस एक्शन पर्सपेक्टिव से बात करें, तो लोअर साइड में अगर निफ्टी डाउन साइड में स्लिप करती है, तो यू वुड सी 11,852, 11,805, 11,791, 11,762. ये एक रेंज इसमें हमारे पास में सपोर्ट की रेंज है, और शायद इस रेंज में ये वाला गैप फिल भी हो सकता है अगर निफ्टी डाउन साइड में स्लिप करती है तो. एंड अगर निफ्टी में वापस मंडे को बुलिश मूव आता है, टेकिंग क्यूज फ्रॉम
international market, then you can see that Nifty will have a resistance at 11,939, 11,953 and 12,013. अगर 12,013 टूटता है friends, तो 12,071 would be the next destination for Nifty on Monday, right? Of course, we will be looking at it from other, like many other points like option chain or lot many other parameters we'll be looking before we deciding that what kind of move is possible on Monday. But at this point of time, price action perspective से अगर हम निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज देखें फ्रेंड्स, तो वो हमको नजर आती है 11,762. मैं लिख देता हूं यहाँ पे फ्रेंड्स, 11,762 to 12,000 12,071, right? 11,762, राइट? सो ये एक ट्रेडिंग रेंज नजर आ रही है जो कि हमको प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव पे दिखाई दे रही है, राइट? एट द एंड ऑफ द सेशन फ्रेंड्स, वी विल बी लुकिंग एट इंट्राडे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर मंडे की कौन से पोजीशन में आपको लॉन्ग बनाना चाहिए, कौन से सिचुएशन में आपको शॉर्ट बनाना चाहिए. बट बिफोर दैट वी विल बी लुकिंग एट की स्टॉक्स एंड द डेटा पॉइंट्स, राइट? सो लेट्स गो टू हैव अ लुक एट की स्टॉक्स ऑफ निफ्टी, हाउ दे आर परफॉर्मिंग बिफोर वी टॉक ऑफ एनीथिंग एल्स. तो पहला स्टॉक पकड़ते हैं हम फ्रेंड्स टाइटन का. तो टाइटन इज वन ऑफ द की कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ निफ्टी एंड फ्राइडे हालांकि इसने खास अप मूवमेंट नहीं दिखाई. we've been bullish on Titan from this level of almost 1000. इसके बाद में अभी शॉपिंग सेंटर्स खुलना चालू हो गए, तो टाइटन की जो शोरूम से मिली वो शॉपिंग सेंटर्स में रहती हैं और अच्छी खासी सेल हो रही है एंड प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. एंड अगर टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बात करें तो Titan is now coming closer to a distribution zone, friends, and a distribution zone from the market structure as well as from the trend line, right? तो upper trend line में है, now it has entered a triangle, और जब तक ये triangle से either downside या upside में breakout नहीं करता friends, it will be advisable not to take position in Titan. हालांकि इंडिकेटर के पर्सपेक्टिव से देखें तो टाइटन में एक बुलिश बायस क्लियरली दिखाई दे रहा है, विच इज टुवर्ड्स द टारगेट ऑफ 1300 एंड 1341 के आसपास में इसमें मुझे टारगेट दिखाई दे रहा है. सो टेक योर पोजीशन अकॉर्डिंगली, राइट? सो नेक्स्ट स्टॉक व्हाट वी विल पिक अप इज द हैवीवेट रिलायंस. एंड रिलायंस lately had been in consolidation mode, and जनरली रिलायंस में एक दो बड़ी न्यूज आती हैं तो फ्यू डेज इट मूव्स अप एंड देन साइडवेज हो जाता है, बिकॉज एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है, राइट? सो ये एक जो लोअर ट्रेंड लाइन इसको रोक रही थी वो तो एनीवे टूट गई. इट हैज आल्सो एंटर्ड अ ट्रायंगल पैटर्न. नाउ इट्स अ आउट ट्रायंगल पैटर्न, एंड ये आउट ट्रायंगल पैटर्न है, जब तक रिलायंस निकलेगी नहीं तब तक अगेन it will remain in the consolidation zone. So let's say अगर Reliance 2300 के ऊपर जाती है friends, तो you would see again it is in a distribution zone. So कुल मिला के जब तक Reliance 2370 के ऊपर नहीं जाती है, you would not be sure whether to take a long position or not. Or let Reliance come to this zone somewhere around 2150 के आसपास में या 2000 के आसपास में, तो वहां पे भी आपको एक बुलिश बायस मिलेगा, यहाँ पे आपको एक बुलिश पोजीशन बनाने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ये कंसोलिडेशन का जोन है. इसमें इफ यू आर लुकिंग एट द शॉर्ट टर्म, यू मे एंड अप इन दिस ट्रेंड फॉर अ लिटिल लॉन्गर. तो मे बी पेशेंस टूट जाए जल्दी, इसके लिए यहाँ पे पोजीशन बनाना 2370 के ऊपर बेटर रहेगा. अपसाइड विल बी 2470 एंड देन 2600, राइट? तो उसका नेक्स्ट टारगेट रिलायंस का वो होगा. एंड ओवरऑल इंडिकेटर के पर्सपेक्टिव से बात करें, दैट मींस टेक्निकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो रिलायंस डज नॉट हैव मच ऑफ अप मूवमेंटम, राइट? तो यहाँ पे काफी वीकनेस रिलायंस में दिखाई दे रही है. नेक्स्ट
we will take Bharti Airtel, friends. Bharti Airtel downtrend में था, and my commentary for last few months had been negative about Bharti Airtel, and the target given was 420, जो कि काफी पहले अचीव हो चुका है, and उसके बाद भारती ने थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश की फ्रेंड्स 2 सेशन में, बट वो अप मूव सस्टेन नहीं हो पाया, एंड अभी भी भारती में बियरिशनेस दिखाई देगी. सो दैट मीन्स इट में कंसोलिडेट फॉर सम मोर टाइम, एंड जो ये एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, लेट मी मेक इट लिटिल थिकर सो दैट यू पे अटेंशन टू. तो ये ट्रेंड लाइन के सहारे शायद भारतीय अगर ऊपर आने की कोशिश करेगा, बट द स्लोप ऑफ दिस ट्रेंड लाइन इज सो स्लो फ्रेंड्स कि इसमें आपको प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई दे रही. यस, ऑफ कोर्स 458 के ऊपर अगर भारती एयरटेल मूव कर जाती है, यू माइट सी सम गुड मोमेंटम टुवर्ड्स 517. अगेन 517 के आसपास में यू वुड सी दैट भारती इज गेटिंग रेजिस्टेंस हियर. ये डिस्ट्रीब्यूशन जोन का काम करेगा. सो माय commentary about Bharti Airtel is still consolidation key with a negative bias. Friends, when I'm talking about or analyzing these stocks with the targets, I'm not recommending anyone to take position. Please refer to your financial consultant or investment advisor who can guide you properly. I'm only having this discussion from the perspective of education. So take a note of it. All right. ITC को देखते हैं फ्रेंड्स. ITC is also a giant but is going through a lot of negative sentiments at this point of time, and at अराउंड 160 टू 165 के आसपास में ये अच्छा एक बाइंग जोन है. इसमें इनफैक्ट 155 से लेके 165 के बीच में एक अच्छा बाइंग जोन है, बट ये बाइंग जोन उन लोगों के लिए है जो कि काफी लॉन्ग टर्म इसको होल्ड कर सकते हैं. अदरवाइज 177 के ऊपर जाए तो आप बाय करिए इसको 205 के लेवल तक के लिए. दैट कुड बी द टारगेट. बट आईटीसी की एक स्पेशलिटी है फ्रेंड्स कि काफी लंबे टाइम तक ये कंसोलिडेशन में रहता है एंड रेंज बाउंड रहता है. सो इट्स दिस स्टॉक इज ओनली फॉर द पीपल हु कैन होल्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम. द गुड पार्ट ऑफ आईटीसी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज इसमें almost 6% का dividend yield है, right? But the profits what ITC is making from the cigarette business, which is almost 85%, 84 to 85%, वो सारा profit consume हो जा रहा है इसके होटल business और जो consumer business है, जहाँ पे कि although revenue तो है but profitability कम है. इसके लिए most of the people are losing interest in ITC. So you may choose your investment accordingly, right? So let's look at another heavyweight Asian Paints, which we have seen in uptrend for quite some time, right? Almost March के बाद में इसने एक अच्छी खासी rally दिखाई. It's in a up channel right now, and within up channel also it has made a one narrow up channel. So एशियन पेंट में काफी पॉजिटिव इमोशन रहता है, और अगर आप एशियन पेंट में पोजीशन लेना चाहते हैं तो यू शुड लुक एट व्हेनेवर इट कम्स टू द लोअर चैनल लाइंस, राइट? तो लोअर चैनल लाइन जब ये नीचे आएगा तो इसको एक सपोर्ट मिलेगा फ्रेंड्स 2000 के आसपास में, विच कुड बी अ गुड बाइंग प्राइस फॉर इट. एंड if it falls further, 1960 1950 could be a wonderful price to buy with a target of somewhere around 2200 के आसपास में, या 2150 2160 के आसपास में आपको एक अच्छा टारगेट इसमें मिल सकता है. सो इट्स अ बुलिश एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ऑल्दो एक्सपेंसिव है बट बुलिश है. लेट्स लुक एट मारुति फ्रेंड्स. Maruti is from automobile sector and been showing a good sign, although again ये भी एक अप ट्रेंड में विद इन चैनल मूव करने वाला स्टॉक है. जब भी ये चैनल के लोअर ट्रेंड लाइन में आता है फ्रेंड्स, दिस कुड बी गुड अपॉर्चुनिटी टू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. थोड़ा बियरिशनेस दिखाई दे रही है लास्ट 2 सेशन में, मतलब इसने कंट्रीब्यूट नहीं किया निफ्टी की ग्रोथ में, राइट? तो अगर आपको मारुति करीब करीब 6760 के आसपास में मिलता है तो दैट डेफिनेटली इन दिस जोन इट्स बाइंग अपॉर्चुनिटी विद अ टारगेट ऑफ 7400 at this point of time, and the next target could be 7550. That will be the next distribution zone. So Maruti is in maybe few days ये consolidate करेगा at this point of time, right? So let's look at Tata Motors, which is again from the automobile sector, and Tata Motors also has been moving up, although the fundamentals of Tata Motors are purely weak, right? काफी कमजोर फंडामेंटल्स हैं, yet it's in a up move because जो small vehicles हैं, they are in good
demand right now. And अभी at this point of time it seems Tata Motors is coming towards 130 के आसपास में. यहाँ पे इसको एक सपोर्ट मिलेगा, which could be buying opportunity for the target of 140 5 to 150 के आसपास में आपको एक 20 पॉइंट्स का इसमें मूव मिल सकता है यहाँ पे. बट ये ट्रेंड लाइन जो है टाटा मोटर्स के अप मूव को रोकते जाएगी. जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा ये ट्रेंड लाइन उसको प्राइस को नीचे की साइड में पुश करते जाएगी. और एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो साइडवेज मूव दिखाई दे रहा है यहाँ पे. सो कंसोलिडेशन के जोन में जा रहा है टाटा मोटर्स. Right. So these were some of the stocks. Yes, there are two more stocks, TCS and Infi, we'll be discussing before we look at the international market and try to measure the, rather gauge the mood of the market, right? So TCS again breakout में निकला friends, यहाँ से gap up बनाते हुए, और यहाँ पे इसको selling मिल रही है काफी 2860 के लेवल पे, जो कि फिबोनाची एक्सटेंशन से निकाला हुआ टारगेट है. तो ये टारगेट तो अचीव हो गया, बट एट द सेम टाइम अभी यहाँ पे एक कंसोलिडेशन आपको दिखेगा, जिसमें कि आपको शायद जो डाउन साइड है 2750 के आसपास की रहेगी. सो अगर ये ट्रेंड लाइन टूटती है तो डेफिनेटली यू माइट सी इट एट 2540. बट जिस हिसाब से अभी बाईबैक वगैरह का ऑफर आया है 3000 का, तो टाटा कंसल्टेंसी शायद इतना जल्दी नीचे आने के मूड में नहीं होगी. तो अगर आपको यहाँ पे 2740 के आसपास में मूव मिलता है तो दैट मे बी अ बाय अपॉर्चुनिटी, और बाय ऑन डिप पीपल विल बी डूइंग हियर विद अ टारगेट ऑफ 3000 का टारगेट लेके. नेक्स्ट टारगेट इज 3200 इन टीसीएस, राइट. तो ये एक यहाँ पे ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी आपको शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है. हाउएवर अगर आईटी सेक्टर में मार्केट में करेक्शन आएगा तो यू वुड सी दीज आर द स्टॉक्स व्हिच विल बी शोइंग हैवी करेक्शन, बिकॉज ऑलरेडी इन ये ओवर वैल्यूएशन में चल रहे हैं, राइट. सिमिलर मूव हमने इन्फी में भी देखा फ्रेंड्स. जनरली क्या होता है, एक आईटी के एक स्टॉक में अप मूव आता है तो बाकी के जो अच्छे स्टॉक्स हैं या नामी स्टॉक्स हैं उनमें भी एक अप मूव दिखाई देता है. सिमिलर मूवमेंट हमको इन्फी में भी दिखाई दिया. और अगर इन्फी यहाँ से नीचे आती फ्रेंड्स तो 1060, सो ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का डाउन साइड है, और अगर आप जाती है तो आपको ऑलमोस्ट 40 पॉइंट्स का अपसाइड है. तो मेरे ख्याल से एक्सपेंसिव स्टॉक है, तो लॉन्ग लेना एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मे नॉट बी एडवाइजेबल. हाउएवर if somebody wants to take a long position, I have always recommended at 850 के आसपास में, because ये एक गैप छोड़ के गई है, ये सूनर और लेटर फिलअप होने आएगा. एंड अदरवाइज जिसको शॉर्ट टर्म पे देखना है तो 1060 could also be a buying opportunity as long as Nifty IT sector continues to move up. But pharma and IT sector in my point of view are already heated up. काफी प्रेशर है वहां पे, प्रॉफिट बुकिंग होगी. ऐसे में रिटेल ट्रेडर के लिए these are not the areas where one should enter, right? Now, friends, let's look at what are the international markets exhibiting, right? क्योंकि हमको as of now cues most of the time यहाँ से मिलते हैं. ऐसे में अगर मैं Nasdaq का चार्ट देखता हूँ फ्रेंड्स, तो Nasdaq is a US इंडेक्स, एंड मोस्टली इसमें टेक्निकल टेक कंपनीज हैं. तो Nasdaq is just trying to enter this ascending channel which we have drawn for quite some time. तो इनफैक्ट उसमें एंटर कर गया है. तो अगर ये कंटिन्यू रहता है यहाँ पे बुलिश प्रेशर, देन यू वुड सी इट्स मूविंग इन अप चैनल, एंड ऑलमोस्ट यहाँ पे एक अच्छा खासा अप मूव हमको देखने को मिल सकता है अप टू 12,307. So that means almost 275 पॉइंट्स के आसपास में यहाँ पे हमको 275 पॉइंट्स ये प्लस 300 500 पॉइंट्स के आसपास में हमको अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है Nasdaq में. दैट डेफिनेटली मे ड्राइव इन्फी एंड टीसीएस और एचसीएल जैसी कंपनीज को अप करने में ये हेल्प करने वाला है, राइट. एंड नेक्स्ट वी विल सी इज S&P 500 फ्रेंड्स. दैट्स द ब्रॉड इंडेक्स ऑफ यूएस मार्केट. ऑफ कोर्स मैं उनके फ्यूचर्स को एनालाइज कर रहा हूँ. तो यहाँ पे एक मुझे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में मुझे एक ब्रेकआउट होते हुए दिख रहा है. सो अगेन दैट्स अ बुलिश साइन, राइट. तो अगर आप देखेंगे तो ये एक इसका हेड एंड शोल्डर पैटर्न है,
जिसमें से कि ये ब्रेकआउट हुआ है। और ये देखेंगे तो ये इसकी नेकलाइन थी जो कि करीब करीब ब्रेक हो गई है। तो इसका नेक्स्ट टारगेट ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स के आसपास में अपसाइड है। सो दिस विल ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू अप मूव ऑफ द मार्केट इन कमिंग वीक, राइट। लेट्स लुक एट डव जोन्स फ्यूचर फ्रेंड्स, US 30 के नाम से अभी ये रीनेम हो गया है। तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखाई दे रहा है जिसमें कि नेकलाइन ब्रेक हो चुकी है। तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा अप मूव देखने को मिलेगा जो कि करीब करीब आपको 28,500 से 500 पॉइंट्स का अप मूव यहाँ भी दिखने को मिल सकता है हमको, जो कि अगेन कंट्रीब्यूट करेगा हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के अप मूवमेंट में। सो इंटरनेशनल मार्केट के चार्ट से जो है हमको एक बुलिश मोमेंटम अपने मार्केट में कंटिन्यू होते हुए दिखाई दे सकता है। That's what is visible from here. Now we'll be looking at the option chain data before we conclude about our own market and look at intraday trading opportunities. So किस टाइप का बिल्टअप हमारे मार्केट में ऑप्शन चेन डेटा दिखा रही है फ्रेंड्स, लेट्स हैव अ लुक एट इट। नाउ जब हम बात कर रहे हैं ऑप्शन चेन की, तो वी आर टॉकिंग अबाउट वीकली एक्सपायरी विच विल this option chain series will expire on 15th October, friends. And since market has closed at 11,914, तो हम बात करेंगे एटीएम की 11,900 पे, और उसके आसपास में हम कोशिश करेंगे देखने की कि किस टाइप के बिल्टअप यहाँ पे बन रहे हैं, किस टाइप के बिल्टअप बुल्स ने बनाए हैं, किस टाइप के बिल्टअप यहाँ पे बियर्स ने बनाए हैं। तो 11,900 पे फ्रेंड्स यू कैन सी दैट 1.4 million contracts हैं, so this will work as a support, and freshly 1.1 million contracts यहाँ पे write हुए हैं, which definitely is a encouraging for bulls. इसके नीचे 729 पे 11,850 पे 7.29 million 7.29 lakh contracts हैं, तो this will act as a support 2 and support 3 will be 11,800। तो ये मेरा सपोर्ट 3 का काम करेगा। 11,700 जहां पे कि ऑलमोस्ट 9 लाख फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं फ्राइडे में। 2.2 million contracts are overall there, so this will act as a support for, and this should be my final support for Monday, because यहाँ पे maximum OI हमको दिखाई दे रहा है, right? So 11,700 on lower side is the visibility here. Now friends, on call side हम पोजीशन देखेंगे कि बियर्स ने किस टाइप की पोजीशन बनाई हुई है, राइट? सो एट 11,900 अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, तो 11,900 पे वी आर सीइंग दैट a strong resistance is clear here, right? Then उसके थोड़ा ऊपर 11,950 पे कुछ खास कॉल राइटिंग नहीं हुई है, बट 12,000 पे ऑल्दो खास कॉल राइटिंग नहीं हुई, बट ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट 1.5 मिलियन है, जो कि गुड रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए, राइट? सो 12,000 हो गया। 12,050 पे कुछ खास कॉल राइटिंग अगेन नहीं हुई है, बट 12,100 पे यू कैन सी दैट 5.49 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स की बिल्टअप बनी है, एंड 1.2 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो दिस विल वर्क एज R3। सो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे 11,700 से 12,100 की रेंज में हमको निफ्टी मंडे दिखाई दे सकती है, ऑल्दो ये काफी ब्रॉड रेंज दिखाई दे रही है ऑप्शन चेन के बेसिस पे। मे बी वीकेंड 2 दिन ऑफ थे, सैटरडे संडे के, शायद जो कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स थे उतने ज्यादा एक्टिव नहीं थे। मंडे यू वुड सी दिस डेटा पॉइंट गिव्स यू मोर क्लैरिटी, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम थोड़ा एक ब्रॉड बैंड दिखा रहा है, राइट? सो इस ऑप्शन चेन सीरीज का पुट कॉल रेशियो है फ्रेंड्स 1.25, जो कि एक बुलिश बायस दिखा रहा है हमको। और प्रोविजनल डेटा के हिसाब से बात करें फ्रेंड्स, तो फ्राइडे का प्रोविजनल डेटा काफी एनकरेजिंग नहीं था। We had seen FIs were net sellers here with a 39 crore rupees in cash equity market, छोटा सा वॉल्यूम था, और DIs were net buyer, तो थोड़ा इक्वेशन बदलते हुए नजर आ रही है। 127 करोड़ का DI ने बाइंग किया इन इक्विटीज इन कैश मार्केट। Although looking at the move we had in Bank Nifty and Nifty, this is a peanut in term of business in
cash market in equities, right? FIs and retail traders are turning bullish in options. So basically Friday का जो up move था वो FNO का up move था. This seems to be clearly visible. अगर हम RSI की बात करें तो RSI is at 68, तो काफी bullish bias दिख रहा है. इंडिया विक्स फ्राइडे को 5% डाउन हुआ, so again a good sign for bulls. However, market is in a overbought zone for many days now. So एक करेक्शन और एक कंसोलिडेशन ये रेंज में दिखता है मुझे होते हुए, राइट? अगर मार्केट 11,762 के ऊपर सस्टेन करती है with a minor correction, then you would see 12,100 could be our next target in Nifty. But अगर 11,762 slip करती है Nifty, then you would see 11,400 could be the tentative target in the correction for Nifty. So trading range मुझे जो मंडे के लिए ओवरऑल प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन चेन से दिखाई देती फ्रेंड्स, वो 11,750 से 12,050 तक की एक ट्रेडिंग रेंज मुझे यहाँ पे दिखाई देती. सो यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? एंड 12,000 के आसपास में फ्रेंड्स, whenever the price will touch, you would see that the market will become volatile because that's psychological level as well, right? So let's look at intraday trading opportunities in a smaller time frame on Monday. क्या scenario बन सकता है, right? So let me open the chart in a smaller time frame, friends, right? So अगर market ये लेवल को तोड़ के नीचे जाती है फ्रेंड्स, राइट? सो लेट मी मेक दिस इन अ ब्लू कलर एंड थिकर लाइन सो दैट यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट, राइट? सो अगर लेट्स से ये एक प्राइस रिजेक्शन था एंड ये एक सपोर्ट लेवल भी था, सो लेट्स से 11,899, सो वी कैन से दैट 11,900 के नीचे अगर मार्केट जाती है फ्रेंड्स, तो आपको ये एक let me recorrect it. One minute, friends. Yeah. So let me draw that, right? So below it, friends, it could be a short trade, right? इसके नीचे एक शॉर्ट ट्रेड हो सकता है विद अ टारगेट ऑफ 11,852, और 11,852 अगर टूटता है फ्रेंड्स, देन योर टारगेट वुड बी 11,805. सो 50-50 पॉइंट के ये शॉर्ट ट्रेड्स बन सकते हैं, और आपको यहाँ पे भी बुलिश बायस मिल सकता है और यहाँ पे भी एक ये जोन में बुलिश बायस मिल सकता है, राइट? और अगर आपको मार्केट अपसाइड में ट्रेड करना है तो 11,953 के ऊपर, तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन बनता है फ्रेंड्स. I will say no trading zone. And 11,953 के ऊपर अगर आपको मार्केट दिखती है जाते हुए, तो then you can take a long position for next 50 points. तो 11 या 60 पॉइंट के लिए 12,013 तक या 12,950 12,050 के आसपास में आपको मार्केट 12,060 के आसपास में मार्केट जाते हुए दिखाई दे सकती है. बट अगेन 12,000 के आसपास में जैसे भी मार्केट पहुंचेगी, वोलेटाइल होगी मार्केट फ्रेंड्स, एंड हैवी प्रॉफिट बुकिंग चालू हो सकती है. इसके लिए अपसाइड मुझे लिमिटेड दिखाई देती है जब तक कि मार्केट 11,950 के ऊपर सस्टेन न हो हाफ एन आवर 45 मिनट तक, तब तक लॉन्ग ट्रेड ना बनाए, राइट? सो दैट्स माय ऑब्जर्वेशन ऑन दिस मार्केट. ऑफ कोर्स देयर आर लॉट मेनी गैप्स हियर. हो सकता है कि ये गैप फिलअप करने आए मार्केट और 11,762 तक भी आ सकती है. सो market is at a crucial juncture, friends. Need to trade market very carefully. That's what I would advise, and remain neutral or light. Now, to conclude, 11,750 to 12,005 as our trading range, and वॉच आउट Q2 FY21 रिजल्ट्स. तो सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट आना चालू हो गए. इफ यू आर स्टॉक स्पेसिफिक, दैट विल गिव अ मोमेंटम टू निफ्टी, दोज रिजल्ट्स व्हिच आर कमिंग फॉर स्टॉक स्पेसिफिक. एंड US 30 का ऑप्शन, US 30 का फ्यूचर देखना ना भूलें, एंड ऑप्शन चेन प्लस open interest of various futures will also guide you to trade stock
और स्टॉक के फ्यूचर के लिए, राइट? इंडिया विक्स एंड यूएसडी आईएनआर का चार्ट आपको हेल्प करेगा मार्केट के इमोशन को गेज करने के लिए फ्रेंड्स, यूज दैट. एंड इफ यू आर ट्रेडिंग ऑन मंडे, यूज स्टॉप लॉस, एंड इफ यू आर इन प्रॉफिट, डेफिनेटली यूज trailing stop loss and lock your profits, right? I trust this analysis is helping you to navigate through the market and you're becoming profitable trader, friends. And many of you have shared in our YouTube that you are consistently making profit. It gives me immense pleasure and happiness. That was what also gives me a lot of energy to make this kind of videos and analysis on daily basis. So thank you so much for sharing that you guys are becoming profitable traders. That's the only motive I have, such that I can share whatever analysis I know with you, right? Thank you once again for watching the video. To get latest information, friends, please subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon such that you get notification on our latest videos. Uh, there are many YouTube videos here we have posted for enhancing your skill sets. Please watch them and also share with your friends and family members who can also be benefited from quality knowledge. Signing off until the next video, friends. Good luck, happy trading, happy investing.